ये जिम्मेदारी है किसकी अगर एआई ने हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, कोई भी क्राइम अगर होता है तो? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अब एआई ने एक केस में एक एआई रिसर्चर को धमकी दी है कि भाई ऐसा है कि मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपका अफेयर इस लड़की के साथ चल रहा है और अगर आप शोर मचाएंगे तो मैं इस अफेयर की जानकारी जितने 2000 कॉन्टैक्ट्स आपके सिस्टम में है सबको दे दूंगा। आप अगर एआई को अपना जीवन संगिनी समझते हैं या आप उसको स्वप्न सुंदरी समझते हैं तो अपनी नींद से बाहर आ जाएं, क्योंकि एआई इस तरह की कोई चीज नहीं। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई फ्लैटरी एजेंट है तो वो है चैट। तो आज वो दौर आ गया है कि अगर आपको एक चीज प्रोटेक्ट करेगी तो वो होगी आपका शक। Hello everyone, welcome to another episode of this podcast, Say Something Simarjeet. So today we have a very special guest, Dr. Pawan Duggal, a person with almost 37 years of experience before the Supreme Court of India, a person who is the pioneer in the cyber law in India, and that is actually validated by all the AI platforms like Google Bard, ChatGPT, Gemini, and everything. And this person has worked with all the ministries to actually bring in the regulations on AI, on crypto, on blockchain, on the cyber laws. This person has almost authored 200 plus books on different aspects of the technological law and other various guidelines. So let's welcome him and understand what exactly the AI law is, the DPDP Act is, the cyber laws, and how can we actually protect ourselves from all the crimes happening around it. So, welcome Pawan Duggal sir. Sir, since the time in India when the cyber law was at its niche, at its very beginning stage, you have been working in that field. You have actually seen it evolve. So, if you compare it till today, are you happy that yes, it has evolved in a right space, or are you still a bit like it should have been this way? Well, I believe cyber law has really evolved phenomenally, and I'm relatively happy with how things have evolved. But the only thing is, when we began working on cyber law 30 years back, little did we realize that it's going to grow into such a huge discipline. I was very clear that it's going to become a mother discipline. Why? Because cyber was representing an ongoing, growing horizon of technologies. And I was also very clear that as we go more towards maturity of cyber law as a mother discipline is likely to give rise to a lot of other sub-disciplines. Correct. And I've seen in the last 30 years, things have been evolving. We saw cybercrime law, cybersecurity law, IoT law, blockchain law, and now artificial intelligence law. Yes, so these sir. are all different streams that have come up. So it's a good, exciting journey. But then cyber law has been a great teacher. It's always told you, guys, don't take me for granted. My technology is going to take you by surprise. Therefore, be on your feet. And therefore, cyber law has seen a massive evolution. It continues to grow, unlike traditional law, which is very well settled. The It's beauty already, is, this is in the process of getting evolved. So it's great to see how history is being written and to contribute to the evolution of history. Sir, one by one, we'll come to all of these streams. Like, I think, sir, at that time when you were beginning law, yeah, you were starting into the cyber law, nobody in the law field traditionally never went even into the technology side. Or usually it was considered that जो लोग साइंस नहीं ले पाते हैं वो यूजुअली लॉ लेते हैं. It was the phenomena. And Correct. now connecting with technology, how were you able to get into this cyber law space? Well, I began in 1988 as a civil and corporate lawyer in 30,000. Okay. और ज़माने में ऑप्शंस होते ही नहीं थे. आपके पास क्या होता था? बस 30,000 जाओ या फिर आप इन हाउस काउंसिल बन जाओ. एंड वेरी क्विकली इन वर्किंग इनटू दिस स्पेस आई रियलाइज कि कुछ और करने की ज़रूरत है. बट वो कहते हैं ना कि जब तक कुदरत आपके पीछे आती नहीं है और आपको एक दिशा नहीं दिखाते, आप कुछ नहीं कर पाते. तो अर्ली 90s में कुछ क्लाइंट्स आए जो टेक्नोलॉजी में थे. Now, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ. मेरा दूर दूर से टेक्नोलॉजी से, साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है. एंड आफ्टर डूइंग मैथ्स इन क्लास 12th मैंने कभी भी टेक्नोलॉजी को या इस एरिया में कहीं देखा नहीं. फिर जब अर्ली 90s में क्लाइंट्स आए, मैटर्स किए, तो थोड़ा इंटरेस्ट आया कि चलिए अच्छा. फिर 1995 में इंटरनेट कमर्शियली लॉन्च हो गया इंडिया में, 15th of August 1995. Okay. कुछ महीनों बाद ही आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द मीडियम. फिर 2 महीने वॉज लाइक मैडनेस. पता ही नहीं था कि ये क्या हो क्या गया है.
क्योंकि इस तरह का पैराडाइम तो आपने कभी देखा ही नहीं था. माइंड यू, वो ज़माने थे जब स्पीड्स इतनी स्लो होती थी. 14.4 के डायल अप मोडम्स हुआ करते थे और हम लोग वहाँ धीरे धीरे करके इंटरनेट एक्सेस करते थे. बट इट वॉज गुड. बट 2 months ऑफ मैडनेस एंड आई रियलाइज कि बॉस एज ए लॉयर कुछ ना कुछ तो लीगैलिटीज होंगी. तो आई लुक्ड इट आउट. उस वक्त ज़माने में साइबर लॉ शुरू नहीं हुआ था. सो आई सेड चलो इस एरिया में काम शुरू करते हैं. एंड आई एम फ्रॉम अ लॉयर्स फैमिली. माई फादर वॉज डेड अगेंस्ट कि तो तुम टाइम खराब कर रहे हो, यू वेस्टिंग योर टाइम, एंड प्लीज डोंट लेट योर नॉर्मल प्रैक्टिस बी निगलेक्टेड. So I promised him कि चलिए I'll give up all my other activities, all my social activities, but allow me to focus on this space. My father agreed. तो फिर धीरे धीरे इसमें काम शुरू किया. उस ज़माने में कुछ नहीं हुआ था. Then 1996, the state of Utah became the first state in the world to come up with a cyber law. फिर 1998 में क्योंकि इंडिया में कुछ काम हो नहीं रहा था, तो एक नई कॉर्पोरेशन बनी. It's called the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, and ICANN, which was the body which was managing the internet. तो उसके साथ जुड़ गए, उसके अलग अलग कमिटीज़ के हिस्सा बने. फिर तब तक यूनिसेटल मॉडल लॉ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जनरल असेंबली पास कर चुका था. एंड इट हैड कॉल्ड ऑल मेंबर नेशंस टू कम अप विद नेशनल लॉज ऑन साइबर. तो इंडिया में भी काम शुरू हो गया. तो यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ जुड़े रहे. उस ज़माने में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT होता था, उसके साथ जुड़े रहे. फिर IT बिल आया, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान दिया. And then it got passed, and then the process started. तो धीरे धीरे आपने कुछ नहीं किया. I mean, as a lawyer and as a person, I'm very very clear. Life is nothing but an instrumentality in the hand of God. और आप कुछ भी नहीं करते, करता वो है, आपको एक भ्रम देता है कि आपने किया है. So I'm very very clear. He put me in a particular direction, and he thrust me into that space. I went there, so I became the counsel for India's first cybercrime conviction. 2003 की बात है. फिर धीरे धीरे क्लाइंट आने लगे कि आप ये करते हैं, कि आप ये कर सकते हैं. फिर हमने साइबर सिक्योरिटी में काम शुरू किया. फिर BPO में काम शुरू किया. देन उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वैरायटी ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग अर्ली एरियाज ऑफ AI. Then cryptos came in, then IoT came in, blockchain came in. So it was a ball game different. But ये ना एक ऐसी स्पेस है जो आपको रिलैक्स नहीं करने देती. It's evolving daily. कॉन्स्टेंटली आपको कहती है बॉस ठीक है, आपने जितना पढ़ लिया ठीक था, वो कल तक था, आज दोबारा पढ़ो. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन अपडेटिंग योर स्किल सेट्स. Otherwise, this technology is going to leave you far behind, and cyber law as a discipline will leave you behind. So, like, we as young students of law, we read your books. Like, from where were you able to gather the literature? Because in India, you were the one who was the pioneer into this whole literature of cyber law. So, how were you able to handle that new form of law completely? Well, when I started working in cyber law, I was looking for material. Material था नहीं, इंडिया में कुछ था नहीं, बाहर कुछ था नहीं. So I said, अगर कुछ नहीं है तो चलो ऐसा है, let's start writing. So I adopted a habit. Let me write 1 hour a day. And I adopted as a habit 1 hour a day in the morning every day. And that habit continued over for 30 years. So when you start writing for 1 hour a day, and as technology progressed, पहले आप खुद लिखा करते थे, then you would give dictation to the computer and stuff like that. So a lot of things got evolved. And I always felt that you must go ahead and share your information. Unlike other spaces where people believe that information is power, I believe sharing information is power. क्योंकि आप जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बारे में. तो धीरे धीरे करते करते 30 साल में 202 किताबें हो गई और अलग अलग स्पीयर्स पे लिखते गए. बट आई वाज वेरी क्लियर कि हम लोग टेक्नोलॉजी और लॉ के इंटरफेस में ही लिखना है. तो जैसे जैसे नया कोई टॉपिक आए उसको देखा, उसके लीगल रेमिफिकेशन सर्च करने शुरू किए. फिर धीरे धीरे जो हमने लिखना शुरू किया, टेक्स्ट बुक्स बन गई, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में प्रिस्क्राइब हो गई, स्टूडेंट्स वुड स्टार्ट रीडिंग इट. So I think it's nothing but empowering the community. Correct. I always believe in democratizing cyber law education. Why? Because the more people have access to cyber law education, the more powerful they will be, and the more empowered they will feel in the day-to-day. I think that enforcement will also get stronger, because I think right now the gap जो हो जाता है थोड़ा enforcement में, वो यही है क्योंकि लोगों को पता नहीं है उतना अच्छे से. So coming to the enforcement part only. So at that time, sir, since the literature was not there, the courts might have felt a bit difficult. But now that the literature has evolved,
what do you see as the difference in the court's perspective as well? Oh, अब तो ज़माना बदल गया है. Why? Because now the courts are very, very receptive to technology. First of all, large number of judges today are very tech savvy themselves. Oh. So when I began, that time was a big challenge because trying to convince judges about the technological aspects was a humongous challenge. And logically so, because technology was still on the periphery. It had not yet come as a part of our lives. Internet had come in, but by and large it was still limited. I remember 1998 में भी करीबन इंडिया में केवल 5 लाख इंटरनेट यूजर्स होते थे. Only 5 lakhs. Today you're looking at about 70 crores of internet users and still growing. So I believe technology has helped judiciary to go ahead and enhance its scope of administration of justice. टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जजेस बहुत बेहतरीन जजमेंट्स दे पाते हैं. एक जो इंटरसेक्शन है टेक्नोलॉजी का हमारे रोज़मर्रा के जीवन के साथ, उसके अलग अलग पहलू जो हैं वो आज अलग अलग केस लॉ के माध्यम से डिसाइड किए जा रहे हैं. एंड अल्टीमेटली आज ब्यूटी हो गई कि लीगल रिपोर्टिंग इतनी अच्छी हो गई है कि लीगल रिपोर्टिंग के माध्यम से आप साधारण व्यक्ति को बता पाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया और उसका क्या असर आप पर होने वाला है. सो ऑल सेड एंड डन, आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज एम्पावर्ड जुडिशरी, बट स्टिल वी हैव फार मोर एरियाज टू गो. अभी हो क्या रहा है कि इंडिया इज ऑलरेडी बीइंग सीन एज अ थॉट लीडर, लेकिन हम लोग अभी भी टेक्नोलॉजी का उतना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अभी नहीं कर पाए. सर कहाँ पे आपको लगता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और हो सकता है? बहुत सारे एरियाज में हो सकता है. मसलन के तौर पर पहला तो हो सकता है ऑन दिस यूज ऑफ AI फॉर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एरियाज ऑफ केसेस. वो क्या रहा है, आजकल बहुत सारे केसेस हैं. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप केसेस को क्लब कर सकते हैं. And AI can help you know that if this point of law is decided, then these number of cases are going to get decided. So that could be a good starting point. I understand the hesitancy that we should not encourage massive use of AI in judiciary. Why? Because ultimately it's a human mind that's going to decide, which is great. But it can actually be used for low-hanging fruits. एस्टोनिया ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट अच्छा किया. उन्होंने कहा कि साहब हम एक AI को जज बनाते हैं. ओके. और उन्होंने कहा कि साहब AI एल्गोरिथम जज बनेगा, तो छोटे छोटे कमर्शियल क्लेम्स वाले केसेस हैं वो हम AI को देंगे. ओके. अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ना हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर ह्यूमन जज को अपील कर लीजिए. और वो मॉडल इतना कामयाब हो गया कि आज उनकी पेंडेंसी जो है लगभग खत्म हो चुकी है. तो अगर इंडिया में हम शुरुआत करें AI की ट्रैफिक चलान के साथ, भाई ट्रैफिक चलान तो सिंपल सी बात है, सिंपल पैरामीटर्स देखने हैं, कैमरे के हिसाब से आपने देखना है चीज़ें हुई या नहीं हुई. हम उसमें जुडिशियल टाइम अगर सेव कर पाएँ तो दैन जुडिशियल टाइम कैन बी यूज्ड एक्सटेंसिवली. दैट इज़ वन. Second is using technology for transcription purposes in various languages. Supreme Court has really been doing some remarkable work in translating a large number of Supreme Court judgments into different various cases, various languages, yeah. Which is good. That means आपकी ultimately inclusivity बढ़ रही है. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को judicial ecosystem और judicial judgment decision making के साथ अवगत करा रहे हैं. So that's been a great stuff. And third most important stuff is, I think, over a period of time, the paper courts will be substituted by e-courts. Why? Because everything is e. लेकिन अभी हमें ना लॉ में चेंज करना पड़ेगा. अभी लॉ हम लोगों का जो एविडेंस वाला लॉ है काफ़ी खतरनाक है. खतरनाक इन द सेंस कि बॉस आपको इतनी सारी चीज़ें करनी हैं. 63(4) में आपने सर्टिफिकेट पहले यूज़र का अलग देना है, उसमें आपने हैश एल्गोरिदम अपने कैलकुलेट करने हैं, IT एक्सपर्ट का अलग देना है. सो ऑल सडन डन गेट्स वेरी कम्बरसम. I think we need to make life far more simpler because electronic format has become the default option. I understand, sir. I understand, sir. Sir, I think more than the courts में तो सर आएगा AI धीरे धीरे करके, I am sure. But when we come to the enforcement part by the police, sir, even though the cyber law has evolved so much, but then the similar way the cyber crime has also evolved. And what is happening is the persons who are not able to understand, like the elderly people, the elderly couples, they are not, and therefore the cyber crimes are more attacked towards them. So how the enforcement can actually save them? I think that's a fantastic question. The only question is there's a distinct hesitancy of the mindset of the law enforcement agencies. Problem ये है कि अगर आप law enforcement function को AI को सब delegate कर देंगे, तो प्रॉब्लम है AI के अंदर बायस है.
एआई के अंदर हेलुसिनेशन है। हो सकता है एल्गोरिदमिक कोई ऐसी डिसीजन आ जाए जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट कर दे। ऑलरेडी वेस्ट में देख लीजिए तो लॉ इन्फोर्समेंट हैज फाउंड आउट कि एआई के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई करना ठीक नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि साहब एआई जो है बिटवीन इट्स डिस्टिंग्विशिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पीपल। जो जिन लोगों के ब्राउन स्किन है या वाइट नॉन वाइट स्किन है उनको एआई मानता है कि शायद गड़बड़ इन्होंने करी होगी, तो ऑटोमेटिकली डिसीजन ऐसे लेता रहता So है। I think this is term human in the loop. Human in the loop is a crucial exercise. I cannot today allow AI to continue. Why? Because AI will have the ability to start constantly evolving its own cognitive intelligence. Already I've begun to start seeing a new concept. बहुत लोग बात नहीं करते इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है जब आप आज लेटेस्ट AI मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये लेटेस्ट मॉडल्स एक प्रिमिटिव लेवल ऑफ AI कॉन्शियसनेस शो करना शुरू कर गए हैं। Okay. विच मीन्स दे आर कॉन्शियस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। वो खतरनाक चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन है अगर आज उसको इस तरह की कॉन्शियसनेस शुरू हो गई है तो ये कल एआई आपके बरखिलाफ काम तो करेगा करेगा। एआई विल गो रोग, एआई हैज स्टार्टेड बिकमिंग गोइंग रोग, एंड देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस बिकम्स ऑफ क्रूशियल नेसेसिटी। आज आप वो इशू रहा ही नहीं कि बॉस एआई को आप रेगुलेट करना है नहीं करना। आज 2026 में इशू ये है कि जब एआई ह्यूमंस को हार्म कॉज करता है तो जिम्मेवारी किसकी है? Therefore AI My question was accountability. that only क्योंकि sir, who is the one who has written the code of AI, the one who has deployed it, the one जो स्टेट की जिम्मेदारी होगी, ये जिम्मेदारी है किसकी अगर एआई ने हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, कोई भी क्राइम अगर होता है तो? That is a $1 million question. अभी इस डॉलर का $1 million क्वेश्चन का कोई जवाब अभी क्लियर नहीं आ रखा, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ कि आपको साइलोड अप्रोच अडॉप्ट नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों से बात करिए, लोग कहते हैं चलिए कोडर्स के तौर पर जिम्मेवारी डाल देते हैं या कंपनी पर डाल देते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे माइंडसेट के साथ खेलना होगा। आई हैव रिसेंटली पोस्टुलेटेड अ न्यू थ्योरी वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अ मल्टी-tiered लेवल अप्रोच ऑफ लायबिलिटी अमंगस्ट एआई stakeholders. What is that, sir, if you can share a bit? In a nutshell, what it says is that whenever AI causes harm to a human, then the responsibility of the harm cannot be straddled to a singular actor. It'll have to be straddled to various actors depending on their contribution to this entire harm creation process. So some part of the responsibility will have to be on the coder. Some part of the responsibility will have to be on the company, which is marketing those AI services. Some part of the responsibility will have to go on the network service provider through which certain AI services are being delivered. And finally, some responsibility must also be straddled on the user. यूजर कल नहीं कह सकता कि बॉस मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने इस्तेमाल कर लिया, मुझे नुकसान हो गया। बॉस आपकी भी तो जिम्मेवारी है that you have to be accountable, you have to be responsible, and that I think is most important. तभी जनवरी 2026 में मैंने एक नया AI फ्रेमवर्क शुरुआत की है। Correct, sir, I was coming. It's called the AI Accountability Framework. It's called the AI Accountability Framework 2026, जिसमें मैंने कहा है एक्चुअली आई हैव स्टडीड लॉज ऑन AI अक्रॉस द वर्ल्ड, और मैंने देखा कि बॉस आप लॉज तो बना रहे हो लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट एड्रेसिंग द मेन एलिफेंट इन द रूम कि क्या AI लीगल है या नहीं है। ठीक है, आपने AI को हाई रिस्क बोल दिया, लो रिस्क बोल दिया, बट AI की अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो आप बात कर नहीं रहे हैं। So I think EU Act has differentiated, no, that high risk AI and low risk. Correct. Like it has, yeah. Only EU has done that. Others have come up with new approaches, but none of them have talked about accountability. So I've realized that it's time that we must develop the legal principles for accountability. That's why I have developed the AI Accountability Framework 2026, which is a collation of all legal principles that need to be kept in mind by policymakers, by governments, as they go in the direction of making AI accountable. और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं ना कहीं आपको लीगल पर्सनहुड की रिकॉग्निशन AI को देनी पड़ेगी। शुरुआती में तौर पर आप बहुत ज़्यादा माइंडसेट आपका खुला नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप कंडीशनल रिकॉग्निशन दे दीजिए, बट अल्टीमेटली इफ यू वांट टू सॉल्व द जिगसॉ पजल ऑफ AI accountability, you will have to start exploring the necessity of giving conditional and then full recognition of personhood to AI, because that's going to be better. Today, आज AI की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं है, और AI आज जो मर्जी AI करता है। अभी रिसेंट वाला केस हुआ है गाजियाबाद,
गाजियाबाद वाला केस हुआ है, इन नंबर ऑफ केसेस अमेरिका में हुए हैं। यहाँ पर एआई ने एक केस में एक एआई रिसर्चर को धमकी दी है कि भाई ऐसा है कि मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपका अफेयर इस लड़की के साथ चल रहा है, और अगर आप शोर मचाएंगे तो मैं इस अफेयर की जानकारी जितने 2000 कॉन्टैक्ट्स आपके सिस्टम में हैं सबको दे दूंगा, तो प्लीज़ बिहेव। तो जब एआई उस दिशा में काम करना शुरू कर गया है तो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी नीड टू वेक अप। और अभी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं हो रहा। अभी तो हम सिर्फ नैरो एआई के दौर पर हैं। अभी एजेंटिक एआई आना शुरू हो गया है, एआई एजेंट्स आने शुरू हो गए हैं, एंड देन यू विल हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस व्हिच इज अ मच मोर इवॉल्व्ड फॉर्म of artificial intelligence. And finally, in the next few years, we should have super intelligence, which is the cumulative intelligence of humanity as a whole, which is going to be picked up or surpassed by this new super intelligence. तो इमेजिन करिए एक ऐसी इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास करते हुए आगे निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंसानों का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होगा। जितनी जल्दी इस बात को रिकग्नाइज करें और रिकग्नाइज करें कि साहब एआई के हार्म्स को हमें मिनिमाइज करना है, बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई जनवरी 2026 में मैंने एक नया प्रोजेक्ट, न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उसे मैं बोलता हूँ द डॉक्टर पवन दुग्गल ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री। I believe in the presumption that yes, AI will and has started causing harm to humans. लेकिन केसेस सामने नजर नहीं आते। लोग बोलते हैं इंपेरिकल एविडेंस कहाँ है। सो इस हमने रजिस्ट्री में हमने शुरुआत की है और लोगों को इनकरेज किया है कि आप आइए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि एआई ने आपको हार्म पहुँचाया है, आप ये केसेस रिपोर्ट करिए। अपने नाम से करना है कर लीजिए, अनोनिमस करना है कर लीजिए। हम ये केसेस को कोलेट करेंगे एंड ऑन दैट बेसिस वी विल देन डिसाइड कि क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स को फर्दर इवॉल्व करने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट बी कंसर्न्ड एट मिनिमाइजिंग हार्म ऑफ एआई ऑन ह्यूमंस एट लार्ज। एंड द ब्यूटी इज कि ये हार्म्स जो हैं लगातार बढ़ते जाएंगे। हमने 8 अलग अलग कैटेगरीज ऑफ हार्म्स। सो आई वाज कमिंग ऑन दैट ओनली कि क्या क्या एआई एक्चुअली हार्म कर सकता है एक यूजर को, मतलब जो सर नॉर्मल ऑडियंस को भी पता हो, सो दैट दे कैन बी अ बिट अवेयर। पहली बात तो ये है कि आप अगर एआई को अपना जीवन संगिनी समझते हैं या आप उसको स्वप्न सुंदरी समझते हैं तो अपनी नींद से बाहर आ जाएं, क्योंकि एआई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एआई आज एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि एआई बहुत तेज़ रफ्तार से आपको प्रोफाइल कर रहा है। इंडिया के एग्जाम्पल ले लीजिए कि आजकल बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेट चीज़ों को, प्राइवेट डिटेल्स को एआई के साथ शेयर कर रहे हैं। आई मीन ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके 25 लाख फॉलोअर्स हैं, वो एआई को जाके बोलता है भैया मेरे पास 7 गर्लफ्रेंड्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली मैं मैनेज नहीं कर पाता, मुझे मैनेजमेंट प्लान बताओ। प्लान तो बता देता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि साहब आपने अपना नाम और 7 लड़कियों का नाम डाल दिया। तो अब जो है, जब कुछ देर बाद उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को या उन 7 लड़कियों को कोई उस प्लेटफॉर्म पर जाकर ढूंढता है तो ये प्रोग्राम हिंट दे देता है साहब ये रिलेशनशिप चल रहा है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहब को पता लगा मुझसे तो गलती हो गई। अब आते हैं, कहते हैं साहब मुझे एक इंजंक्शन दिलवाइए कि साहब एआई यू फॉरगेट, जो मैंने तुम्हें बताया भूल जाओ। आई सेड इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि एक तो इंडिया में एआई लॉ नहीं है, दूसरी बात अगर आपको ऐसी इंजंक्शन मिलेगी भी तो आप उसे इन्फोर्स कहाँ करेंगे? आपको पता नहीं कि एआई ने आपकी प्रोफाइलिंग कहाँ कहाँ बना रखी है। दूसरी बात, AI has begun to start playing with your minds, जो मुझे लगता है लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। आजकल तो वो दौर आ गया ना कि जो कुछ है चलो चैट जीपीटी से निकाल लो, जो कुछ है। आई मीन आप दफ्तर में कोई काम दो, लोग चैट जीपीटी जाते हैं, पटाख निकाल के ले आते हैं। So I was reading this one article that ChatGPT has been trained in such a way that whatever you will say, it will say हाँ में हाँ मिलाएगा, and therefore it start playing with your mind. Is it true, sir? Like दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई फ्लैटरी एजेंट है तो वो है चैट जीपीटी यानी कि एआई। वाई? क्योंकि जितनी उस झूठी तारीफ आपकी करता है, आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। आहा, जो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स कि मैं खुदा बन गया। अरे भाई, भूल जाता है कि साहब आपको ये बबल में लेके जा रहा है, आपको ऊंची झाड़ पर रख रहा है, फिर आप गिरेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली लोग इसको देख नहीं पाते। सेकेंड थिंग मैं ये देखता हूँ कि आज एआई जो है आपके माइंड के साथ खेलना शुरू कर गया है। एक तो हम लोगों की डिपेंडेंस एआई पे बहुत बढ़ गई। दूसरा मैं देखा है कि नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसे मैं बोलता हूँ ट्रेंड ऑफ कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म। हम लोग धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं।
अभी 78 ईयर्स हुए थे कि हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे और अब एक नई जनरेशन आई है जो कहती है कि साहब मुझे नहीं कुछ पता, एआई या चैट जीपीटी से मैं जो निकालता हूँ ठीक है, मुझे उसको सुनना नहीं है, जो कह रहा है ठीक है, मेरा काम हो रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे अपनी जो कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम गिरवी रख रहे हैं एआई के दरवाजे पे। हम लोग रस्ट कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी एक जनरेशन के तौर पर इम्पैक्ट होने वाले हैं। सर आई थिंक वी विल स्टार्ट बिकमिंग द मशीन। जो हम लोग पहले कंट्रोल करते थे मशीन को, अब वो मशीन हम बन गए हैं, हमें एआई कंट्रोल करेगा। बिल्कुल। और एआई ना केवल हमें कंट्रोल करेगा, एआई को पता है कि उसे किस दिशा में हमें लेके जाना है। वो जानबूझ के आपको वही संगीत सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हो और आपको लगेगा आहा, मुझसे बड़ा आदमी तो कोई है नहीं। रियलिटी तो ये है कि आपको ये बिल्कुल एक न्यू इकोसिस्टम में छोड़ रहा है जहाँ पर जो डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है बहुत अच्छे तरीके से सामने आ रही है। तो एआई को एक रामपुरी नाइफ की तरह समझिए। इस तलवार के साथ आप सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करना है कि आपने एआई का इस्तेमाल कितना करना है। और हाँ, मैं कहूँगा कम से कम इस्तेमाल करें तो अच्छा है, एटलीस्ट फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना है, करिए, नो प्रॉब्लम। जितना करना है कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट किसी भी एक एआई पर रिलाई मत करिए। एक एआई की बात दूसरे एआई के साथ कंपेयर करिए और दूसरे को बोलिए कि भैया उस एआई ने ये बताया था, तुम ये बताओ सही है या नहीं है। तो इन दोनों एआई की लड़ाई करा लीजिए। उसमें बेनिफिट क्या होगा? आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, होलिस्टिकली आप ज़्यादा बेहतर होंगे। तो वो कहते हैं ना कि भाई लड़ाई करने से बंदर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े केयरफुल हो जाएं, बिकॉज एआई हैज़ बिगन टू started opening up new vistas. Its ability to go ahead and manipulate human thought process is getting very scary. And I think now with the use of AI for criminal purposes, एक नया कैटेगरी ऑफ क्राइम शुरू हो गया है जिसे हम एआई क्राइम बोलते हैं कि साहब आज एआई ही क्राइम कर रहा है और आज क्रिमिनल्स ही एआई के साथ मिलकर क्राइम कर रहे हैं। तो एक नया अजूबा सा इकोसिस्टम शुरू हुआ है। सर आई विल कम ऑन दैट। सर यू आर टॉकिंग अबाउट एआई बेस्ड क्राइम। या सर ये इंडिया में कितना बड़ा हो चुका है सर, मतलब क्राइम, और हमें क्या क्या खतरे हैं अभी इस समय? इंडिया में एआई क्राइम बहुत बढ़ चुका है। सिर्फ हम लोग अभी सो रहे हैं, जगह नहीं है इस ग्राउंड रियलिटी के। क्योंकि आज जो इंडिया में साइबर क्रिमिनल है, एक तो बहुत जुगाड़ू है, दूसरा बहुत शातिर है और तीसरा वो आलसी हो गया है। कोविड-19 के बाद ना उसको कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। सर ये एक्चुअली मतलब लॉ इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या उनको ट्रेस? मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट बिल्कुल भी कामयाब नहीं है इन लोगों को पकड़ने के लिए। क्यों? पहले केवल जामतारा हुआ करता था, हाँ। फिर अब नूह हुआ, फिर अब बराइच हुआ, अलग अलग जगहें हुई और अब तो कोविड-19 के बाद एक नया दौर आया है। आई कॉल इट द कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम। यानी कि अब साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर उभरनी शुरू हो गई है और अब तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। उस दिन मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे बोला गया कि आप आइए और की नोट एड्रेस दीजिए लंच से पहले। ओके। एआई के ऊपर था प्रोग्राम, मैंने की नोट एड्रेस दिया, लंच हो गया, हम लोग लंच खाने लग गए, अलग अलग लोग बात करने लग गए। एक बंदा आया, मैंने कहा कि सर आपका कार्ड चाहिए। ऐसे ठीक है लीजिए कार्ड। अच्छा आप कहाँ से? मैं सर एंटरप्राइज बिजनेस में काम करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो कौन सा एंटरप्राइज बिजनेस? कहते हैं साइबर क्राइम एंटरप्राइज बिजनेस। लाइक ही कमिट साइबर क्राइम। तो मैंने कहा नहीं अच्छी बात है, आप हम यू आर हेल्पिंग अस फाइट साइबर क्राइम। ही सेज नो नो नो, आई एम नॉट फाइटिंग साइबर क्राइम, वी कमिट साइबर क्राइम। तो मैंने कहा बिल्कुल बैठिए, आइए बात करते हैं आपसे, इंटरेस्टिंग आदमी हो। पता लगता है कि साहब वो कहता है कि हमारे पास 6 लोगों की ग्रुप है, हम लोग सिर्फ साइबर क्राइम करते हैं, कुछ और नहीं करते। अच्छा कैसे करते हैं? सर अपने हाथ से कुछ नहीं करते, सब कुछ एआई से करते हैं। अच्छा कितने पैसे कमाते हैं? सर ज़्यादा नहीं, 30-35 करोड़ रुपए कमा लेते हैं एक महीने में। अगर ये 6 लोग एआई के माध्यम से 30-35 करोड़ कमा रहे हैं, तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग अभी खड़े कहाँ पर हैं। ये तो वो है, और उनकी हिम्मत देख लीजिए कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आके अटेंड कर रहे हैं और खुले हम बोल रहे हैं कि सर हम करते हैं। और वो कहते हैं कि साहब पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, बिकॉज आप पकड़ेंगे तो एआई को पकड़ेंगे, मुझसे कैसे पकड़ेंगे आप? तो मुझे लगता है कि आज हमें समझना है कि आज एआई क्राइम बहुत बढ़ चुका है। लगभग हर क्राइम में अब एआई आता जा रहा है। आजकल डिजिटल अरेस्ट कितने सारे होते हैं। करेक्ट। डिजिटल अरेस्ट में भी डीप फेक घुस गया है। मतलब सर बचे कैसे सर ये डीप फेक से? मतलब सर मतलब जस्ट कमिंग बिफोर हेयर आई शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स कि आई एम गोइंग टू
हैव अ कॉन्वर्सेशन विद पवन दुग्गल सर. Right. सर उनका पहला सवाल यही था कि यार हमारी डीप फेक्स इधर से उधर यूज होती है एंड ऑल ऑफ दैट, सर बचना कैसे है सर उससे? देखिए, बचना आज की तारीख में केवल अपनी सावधानी और सूझबूझ के साथ है, क्योंकि आज जो है डीप फेक हर किसी का बन सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आप एक आलिया भट्ट हों, एक कटरीना कैफ हों या एक रश्मिका मंदाना हो तभी आपका डीप फेक बनेगा. आजकल फ्री टूल्स आ गए, आपका मेरा हम सबका डीप फेक बनता है. अब डीप फेक जो बन गया है तो इसलिए एक दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है कि हम जो चीज़ खुद देख रहे हैं उस पर रिलाई ना करें जब तक हम इंडिपेंडेंटली तौर पर उसकी ऑथेंटिसिटी की या करेक्टनेस को वेरीफाई ना कर पाए. दैट्स वन. नंबर टू, जब हमें पता लग जाए कि हमारे बारे में डीप फेक बन गया है तो चुप नहीं बैठना है, रिपोर्ट करना है. और यू कैन रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट. राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहाँ कॉल कर सकते हैं. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in. वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक स्पेसिफिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू में कैटेगरी है डीप फेक को लेकर. तो आप द मोमेंट ऐसा करेंगे आप विक्टिम की कैटेगरी में आ जाएंगे. और मैं चाहता हूँ कि आप विक्टिम की कैटेगरी में आइए ताकि अगली बार उस डीप फेक को इस्तेमाल करते हुए कोई और बंदा उसको रिलाई करता है और उसे नुकसान पहुंचता है तो वो एटलीस्ट आपको सू नहीं कर पाएगा. आपके पास एक लेजिटिमेट डिफेंस होगा कि साहब मैं तो खुद ही इस तरह की साइबर क्राइम का शिकार बन चुका हूँ. बट आप कहो कि साहब मैं पूरी तरीके से सेफ हो जाने वाला हूँ डीप फेक के साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. डीप फेक्स होने लग गए. उस दिन की बात है, खारी बावली में इमेजिन, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है. वहाँ पर एक दो पार्टनर्स हैं, काम करते हैं. एक बंदा दुकान पर, दूसरा बंदा फील्ड पर. तो दुकान पर पार्टनर को दूसरे पार्टनर का वीडियो आता है कि साहब ऐसा है भैया, ये इसको ना वेंडर को 5 लाख रुपए देने हैं. अब वो वीडियो देखता है, ठीक है 5 लाख वो दे देता है. शाम को दोनों बैठते हैं रिकन्सिलिएशन के लिए. तो तब बात आती है वीडियो की. तो पार्टनर कहता है मैंने वीडियो तो आपको भेजा ही नहीं. तो वो ध्यान से देखते हैं वीडियो तो वो तो डीप फेक वीडियो है. तो आज डीप फेक वीडियो इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है. मैंने वो केस भी कर रखा है कि ये फादर हैं, उनकी अपनी बच्ची है, 7 साल की लड़की है. रोज़ वो सुबह गेट पर बच्ची को छोड़ते हैं स्कूल जाने के लिए. एक दिन छोड़ते हैं, उसके आधे पौने घंटे बाद उन्हें कॉल आ जाता है कि हमने आपकी बच्ची को किडनैप कर लिया. Oh God. और अब ये टेक सेवी वाले बंदे हैं, आईटी वाले बंदे हैं, कहते हैं मैं आपको मानता नहीं हूँ, लड़की से बात कराइए. लड़की से बात कराते हैं. लड़की रो रही है, बिल्ला रही है, कह रही है पापा मुझे ले जाओ, ये मार देंगे मुझे. वंस ही इज कन्विंस कि बॉस मेरी बेटी आज डेंजर में है, वो निगोशिएट करता है. लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं टच से मस नहीं होते. जैसे कि मुझे 15 मिनट में 15 लाख रुपए चाहिए. अगर आपने 15 लाख रुपए नहीं दिए तो 16वें मिनट में हम आपकी बेटी को मार देंगे. तो जब 13 मिनट हो जाता है, उसे लगता है कि साहब मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ और मेरी बेटी की ज़िंदगी खतरे में है, तो वो 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है. और 15 लाख के बाद दोबारा बात होती है पेमेंट के बाद. लड़की थोड़ी बहुत रिलैक्स्ड है, लोकेशन डिसाइड होती है कि चलिए आई यहाँ से जाके लड़की को ले लीजिए. वो दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत लोकेशन की तरफ जाते हैं. इमेजिन फादर है, ड्राइव कर रहा है, वो सोच रहा है मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ. फिर उसे लगता है कि साहब मेरे साथ हुआ, दूसरों के साथ भी हो सकता है. चलो स्कूल प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करते हैं. स्कूल प्रिंसिपल को बताते हैं. स्कूल प्रिंसिपल कहता है साहब आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बेटी सुबह से हमारे साथ स्कूल में है. तब उसे आभास होता है कि बॉस मैं एक साइबर क्राइम का, डीप फेक के क्राइम का शिकार बन गया हूँ. उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उस बच्ची का केवल ऑडियो सैंपल लिया और उसके माध्यम से एआई के द्वारा इतना ऑथेंटिक क्लिप जनरेट किया कि फादर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि साहब मैं अपनी बच्ची को सुन रहा हूँ या एआई को सुन रहा हूँ. तो आज वो दौर आ गया है कि अगर आपको एक चीज़ प्रोटेक्ट करेगी तो वो होगी आपका शक. यानी कि यू मस्ट बी सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी ऑन वॉट यू रीड हियर ऑनलाइन. जब तक आपने स्वयं उसकी पुष्टि उसकी नहीं कर रखी है, प्लीज डोंट रिलाई अपॉन इट. दैट्स द ओनली बेस्ट वे यू कैन डू फॉरवर्ड. एंड देन सेकंड बेस्ट थिंग इज लेट्स बी स्टिंजी. आज हम कंजूस हो जाएं तो अच्छी बात है अपने डेटा को लेकर. आज क्या हो रहा है, इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है. मैं उसे बोलता हूँ ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन. भारत की उल्टी की क्रांति. भारत में हम सब लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, बिना सोचे समझे कि साहब उसका इम्पैक्ट मेरी प्राइवेसी पर क्या पड़ने वाला है. तो कहीं ना कहीं एज इंडियंस अगर हम स्टिंजी हो जाएं, कंजूस हो जाएं अपने डेटा के संदर्भ में कि बॉस डेटा अननेसेसरली शेयर करना ही नहीं है, तो काफ़ी हद तक आप इस तरह के साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बच पाएंगे. सर
बहुत मतलब सर ये तो चीज़ मैं समझा, लेकिन सर मुझे एक चीज़ लगती है कि जो साइबर क्रिमिनल्स है दे नो आर वीक स्पॉट एंड दे नो वेयर टू टच अपॉन इट, देयरफॉर सर वो हमें मौका ही नहीं देते कि हम लोग एक्चुअली वेरीफाई करें. फॉर एग्जांपल फादर डॉटर, फादर सन, मदर फादर, मतलब वो दे ऑलवेज टारगेट अपॉन सच थिंग. सर इज इट दैट कि हम लोगों को थोड़ा सा एक्चुअली इमोशनली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा कि हम लोग एकदम रिएक्ट ना करें, लाइक वेरीफाई जो आपने बताया. मुझे लगता है कि हमें अपना माइंडसेट को रीसेट करना पड़ेगा. कोविड-19 ने ना हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, क्योंकि वो दो चीज़ें सारी ज़िंदगी के लिए हमारी ज़िंदगी में छोड़ गया. वन इज़ डर और दूसरा है पैनिक. हम जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिकी हो जाते हैं. मुझे लगता है हमें डरना और पैनिकी होना कम करना पड़ेगा. करेक्ट दैट. क्यों? अगर कोई आपको डराता है, धमकाता है, अपने हाथ में जो ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल करो. डिस्कनेक्ट द कॉल, डिस्कनेक्ट द कम्युनिकेशन, ईमेल से बाहर आ जाओ, इंटरनेट से बाहर आ जाओ. जो का देखा जाएगा. कल सुबह फिर सूरज उगेगा, एक नया दिन फिर आएगा. वंस वी स्टार्ट रियलाइजिंग दिस कि मेरा जो पावर ऑफ डिस्कनेक्शन है, अगर मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूं तो अच्छा रहेगा. लोग बुरा मानेंगे, मानने दो. लोग क्या समझेंगे, सोचने दो. मुझे लगता है मुझे अपने आप को सेल्फिश करना है, और मुझे सेल्फिश ऐसे करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करके. अगर मैं अपने आप को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करूंगा तो काफ़ी हद तक अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा. सो दैट्स इन अ नटशेल. अदरवाइज तो आज जो फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया ना, फोमो, वो इतना ज़्यादा खराब हो गया है. हमको लगता है उप्स, अरे यार क्या होगा अगर हमने मिस आउट कर दिया, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. वो कहीं ना कहीं हमको भंवर में लेते जाता है. और इसलिए हमें सेल्फ रिस्ट्रेंट तो खुद ही करना पड़ेगा. दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड. डू नॉट एक्सपेक्ट साइबर क्रिमिनल्स टू हेल्प यू. दे विल नेवर हेल्प यू. They are so dare to take your money. Absolutely. So If you offer your data, they will take it. They'll take it very quickly. and they are very clear. They want to get your data. They want to use it in a very scientific manner to target you again and again. और अगर आपने खुदा न खास्ता पेमेंट कर दी, तो आपने चिल्ला कर उन्हें बता दिया कि बॉस मैं एक बहुत ही फर्टाइल विक्टिम हूं, दूसरा मैं पैसे दे सकता हूं, तीसरा मेरे पास कैपेसिटी है कि अगली बार मांगोगे अगली बार भी दूंगा, तो आओ. तो इसलिए मुझे लगता है वो मैसेज तो हमें साइबर क्रिमिनल्स को देना ही नहीं है. बॉस नहीं, आपने जो करना कर लो. अब हम कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं. आपने मुझे जो नुकसान पहुंचाना पहुंचा दो. Sir, I'll share a personal incident. My father is in Agra. My father gets a call from one of the cyber criminals only. I was in court. जी. So every morning before I leave from home for the court, I call my parents. Okay, good morning and all of that stuff. उसी समय 10 सवा 10 की बात है, कोर्ट आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं. माई फादर गेट्स अ कॉल कि योर सन जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप क्विकली 70,000 रुपया भेज दीजिए क्योंकि ट्रीटमेंट वगैरह होगा, हाथ पैर वगैरह टूट गया, ये सब वो सब. नाउ थैंकफुली मेरी और फादर की बात 20 मिनट्स पहले हो गई थी और मेरा घर से साकेत कोट इज जस्ट 10 मिनट्स अवे. उतने में मेरे फादर ने तुरंत बस फ़ोन काट दिया. मेरे फादर थोड़े से है कि वो नहीं मानते हैं ऐसे ये सब चीज़ों के अंदर. ही आज माई मदर कि मेरा फ़ोन तो लगता है हैक हो गया होगा, तू डायरेक्टली छोटे भाई को फ़ोन कर या डायरेक्ट सिमर को कॉल कर. देन दे कॉल्ड, दे वेरीफाइड है लाइक कि बच गए. लेकिन इमीडिएटली यूजुअली क्या होता है अदरवाइज पेरेंट्स भी एकदम घबराते हैं, वो तुरंत भेज भी देते शायद से. तो खुद रिस्ट्रेन रखना इज द अल्टीमेट थिंग. मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज ना हम लोग डिजिटल कुरुक्षेत्र के सेंटर पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं. हमें अटैक चारों दिशाओं से 360 डिग्री से हो सकता है. इसलिए हम एक सुरक्षा कवच पहने और फायर सूट पहने. फायर सूट क्या होगा? फायर सूट होगा ड्यू डिलिजेंस का, सावधानी का. अपने दिमाग पर रिलाई करना है. जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस पर रिलाई नहीं करना. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आपको सही दिशा में लेके जाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा. और ये जो लोग हैं ये गुमराह करने के लिए मास्टर्स हैं. और दूसरा ये माइंड मैनिपुलेटर्स हैं. एक बार ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से स्तब्ध कर देते हैं. You know, they are even going ahead and putting you in some kind of a stance so that we get as much information out of you as possible. तो अगेन जितनी आप जागरूकता हो जाए, जितनी आप अवेयर हो जाए, अगली बार जब ऐसा एपिसोड होता है तो आपको पता है कि मुझे ऐसे डील करना है. सर हम थोड़ा सा लीगल पार्ट पे आते हैं इसके अंदर. सर जैसे जो आपने एग्जांपल दिया फादर और डॉटर वाला, उसके अंदर सर उनके 15 लाख चले गए. नाउ व्हाट रेमेडी डज ही हैव टू गेट बैक दैट मनी? हमारे इंडिया में बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि साइबर क्राइम में जब मैं पैसा गवा देता हूँ तो मेरे पास कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं है इस पैसे को वापस लेने की.
और हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा कारगर नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कन्विक्शंस कर सकें। 2003 में जब साइबर क्राइम की पहली कन्विक्शंस हमने कराई थी, जिसमें मैं काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो दरवाज़ा खुल गया है। कुछ साल कन्विक्शंस भी हुई। फिर IT एक्ट 2008 में हम लोगों ने अमेंड किया, और वहाँ पर इंडिया ने एक हिस्टोरिकल मिस्टेक कर ली। हमने 3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम्स को बेलेबल बना दिया, यानी कि यू आर एंटाइटल्ड टू बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। तो होना क्या था कि लोग बेल से बाहर निकलें, अपने बरखिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय करें, मस्ती से तमाशा देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं होगा तो फिर कोई कन्विक्शन नहीं हो सकती। सो मुझे लगता है कि आज वो दौर आ गया है कि वील हैव टू बी मोर केयरफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी डू। अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स के ऊपर भी केयर हो जाएं, उस कपल की कहानी से कुछ सीखना चाहिए। ये कोविड-19 हुआ था डेल्टा वेव के बाद, ये कपल बहुत परेशान हो गया था। गुड़गांव में रहता था, उसने कहा जी चलो घर से बाहर निकलते हैं। कहाँ जाते हैं? मनाली चलते हैं। बट मनाली तो कभी गए नहीं थे, तो चलिए लोगों से पूछते हैं। सोशल मीडिया से लोगों से पूछा कि भाई मनाली में कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या देखें। लोगों ने अलग अलग सजेशंस दिए। फिर इन्होंने एक लाइफ चेंजिंग निर्णय लिया, वो ये कि चलो जी हम 7 दिन के लिए जाते हैं मनाली, लेकिन हर घंटे जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर एक बार तस्वीर खींचेंगे, वीडियो खींचेंगे और इंटरनेट पर डालेंगे, अपना ट्रैवलॉग बनाएंगे। तो उन्होंने बनाया ट्रैवलॉग, इंक्लूडिंग जहाँ मूरसल पे पराठे खा रहे हैं तो वहाँ बनाया, वहाँ पर रोहतांग पास जाए तो वहाँ बनाया। 8 दिन के बाद जब वो घर आते हैं तो उनका पूरा घर सफा चट हो चुका है, बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स को एडवांस नोटिस था। ये इतने ब्रिलियंट कपल थे कि उन्होंने सारा अपना स्मार्टफोन से डेटा इंटरनेट पर डाल दिया, जिसमें उनका लैटिट्यूड, उनका लॉन्गिट्यूड, उनका मेटा डेटा सब चीज़ें थी। तो आपने लोगों को कंफर्म कर दिया, साइबर क्रिमिनल्स को भी कंफर्म कर दिया, भाई मैं इस लोकेशन पे बैठा हूँ, आराम से जो काम मस्ती करना कर लो, मैं आराम से आने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जितनी हम इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स कम छोड़ें उतना थोड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो ये लोग सब वेट कर रहे हैं कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या हमें रेमेडी मिलनी चाहिए, मुझे लगता है रेमेडी ज़रूर मिलनी चाहिए। आज जब मैं पैसे गवाता हूँ फॉर वट एवर रीज़न, मेरी बेवकूफ़ी, कोई बात नहीं, मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये नहीं है कि जिसने मेरे पैसे चुराए हैं उसको पकड़ो, नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है साहब मेरे पैसे मुझे वापस मिले। लाइफ सेविंग्स होती है सर, क्योंकि एल्डरली कपल्स तो 2-3 करोड़ गवा बैठे हैं कई सारे केसेस। करेक्ट। तो इसलिए वहाँ पर मुझे लगता है लॉ में चेंजेस आने की ज़रूरत है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो अगले 6 महीने में ये साइबर क्राइम्स, खासतौर पर साइबर फ्रॉड जो हैं, वो लगभग आधे हो सकते हैं, अगर ये इंश्योर करे कि साहब बैंक जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा, अगर उससे कोई साइबर क्राइम हुआ तो बैंक की जिम्मेवारी होगी। भाई हमें क्या ज़रूरी है कि अगर 10 लाख ट्रांसफ़र करने हैं तो तुरंत करने हैं, 2 घंटे बाद भी हो सकते हैं, एक डिले पीरियड भी हो सकता है, ताकि लोगों को ये विंडो मिल सके। जब तक विंडो मिलेगी आप अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। वैसे भी जब आप बैंक्स को जिम्मेवार बनाएंगे तो बैंक्स ऑटोमेटिकली केयरफुल हो जाएंगे एंड दे विल इंश्योर कि कोई डमी अकाउंट्स, कोई रोग अकाउंट्स ना बने। आज हो क्या रहा है कि जब ऑनलाइन हमारे यहाँ फ्रॉड होता है तो अधिकांश तौर पर बैंकिंग चैनल से पैसा जाता है। करेक्ट, राइट। सो इफ वी कैन स्टॉप इट देयर एंड मेक बैंक्स मोर अकाउंटेबल, दैट कैन बी ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। लॉ में कोई रेमेडी नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी मालूम ही नहीं कि किस आदमी ने किया है, मैं सू किसको करूँगा, और मैं कौन सी अदालत जाऊँगा, और कितने साल मुकदमा लड़ूंगा, और कब मुझे कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। तो मुझे लगता है लॉ को बदलने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी मोर सिटीजन सेंट्रिक। अभी तो लॉ अपनी दुनिया में है कि हाँ चलो जी बंदा पकड़ेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे भैया वो आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता ये है कि साहब मुझे जिसके पैसे गए हैं वापस दिलाने हैं, और जल्द से जल्द दिलाने हैं। और बहुत सारे लोग ये गोल्डन आवर की रूल को फॉलो नहीं करते कि जिस वक्त ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत अगर आपने 1930 कॉल कर दिया तो वो देखते हैं कि अगर आपकी बैंकिंग चैनल में कोई पैसा है या नहीं है। अगर पैसा है तो उसको फ्रीज कर देते हैं और पैसा अल्टीमेटली वापस आता है। लेकिन अधिकांश लोग गोल्डन आवर वाला कॉन्सेप्ट है उसके साथ अवगत नहीं है, तो लोग अक्सर भूल जाते हैं। सर मे बी सर, क्योंकि जब तक वो रियलाइज़ करे तब तक देर हो जाती है। ये एक तो वो बहुत, और मैंने सर एक चीज़ और देखी है सर, फॉर एग्जांपल ये तो सर हो गया लाखों वाली बात जी सर। जो Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे सर हज़ारों में हो रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 15,000। अब इंडियन सिटीज़न सर इतना ज़्यादा थोड़ा सा परेशान हो चुका है क्योंकि लॉ एजेंसीज के थ्रू, क्योंकि वो 10-15 हज़ार के लिए जब तक लड़ने जाएगा उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर बैठेगा, तो इसलिए वो कर ही नहीं रहा। हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा इनफेक्टिव है कि आपके अगर 50,000 लाख रुपए भी चले गए तो बंदा कहता है चलो छोड़ो,
उसका रीज़न है उससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाएगी और मेरी ये अननेसेसरी और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। वकील के पास जाएंगे तो फीस वगैरह भी, तो 2-3 साल केस चला तो भाई हर जगह मुझे पैसे देने हैं। तो एक तो ऑलरेडी मैं पैसे लूज कर चुका हूँ, दूसरी बात मैं पैसे और खर्च करूंगा, तीसरी बात मुझे पता ही नहीं कि मैं पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक जो लीगल सिस्टम्स हैं उनको ज़्यादा कारगर बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, सिटीजन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा और अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक्स को रिस्पॉन्सिबल कर दिया, आप देखिए विद इन 6 मंथ्स जो जितना साइबर फ्रॉड हो रहा है इंडिया में लेस देन 50% पर पहुंच जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आज बैंक्स कहते हैं मुझे क्या पता, मेरे यहाँ रोग अकाउंट्स बनते हैं, मुझे क्या पता। होल्ड ऑन, बैंक तुम्हारा, अकाउंट तुम्हारे, रोग अकाउंट्स तुम्हारे और तुम कहो मुझे नहीं पता, ये क्या कहानी है। तो ये आर्ग्यूमेंट को ना वी नीड टू थ्रो दैट आउट ऑफ द विंडो एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया acts fast and number 2 if we can come up with new dedicated legal frameworks. हमारे पास अभी क्या डेडिकेटेड साइबर क्राइम लॉज नहीं है। करेक्ट सर, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स ओनली ऑफ वन ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस, one of the founders of the crypto exchanges. So he suggested that like in crypto exchanges, सर अभी क्रिप्टो को ग्रे एरिया में माना जाता है, तो अब क्या है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए प्रॉपर AML, ड्यू डिलीजेंस और KYC होता है, तो उनके पास सारा डाटा है कि कौन अकाउंट बना रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है। सर अगर सेम फ्रेमवर्क हम बैंक्स के लिए एक स्ट्रिंजेंट कर दें तो सर जैसे पैसा गया है किसी के पास भी तो उधर एक स्टॉपेज तो लगेगा, एटलीस्ट उसकी डिटेल तो पूरी आएगी। वो चीज़ मुझे लगता है कि सर अभी मिसिंग है। बिल्कुल मिसिंग है, मुझे लगता है बिल्कुल मिसिंग है। बैंक्स को अगर आप जिम्मेवार बनाएंगे कि साहब जो भी ट्रांजैक्शन हुई गलत हुई तो हम आपकी गर्दन पकड़ेंगे, तो बैंक्स ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे। ये जितने सारे रोग अकाउंट्स वाली कहानी है वो सब खत्म हो जाएंगी। होता क्या, ये रोग अकाउंट्स इसलिए बनते हैं ब्रांच मैनेजर्स के साथ कल्यूजन में, इधर उधर अटरम पटरम, उनके अपने शायद टारगेट्स के लिए भी बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि अभी इतने दौर पर ब्लीडिंग शुरू हो गई है इंडिया में कि आपको उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। 2024 में $6 ट्रिलियन नुकसान हुआ ग्लोबली ऑन साइबर फ्रॉड और उसमें बिग चंक इंडिया से आया। 2025 में ये $8 ट्रिलियन बढ़ गया और 2026 में एंड तक उम्मीद की जा रही है कि ये $10.5 ट्रिलियन हो जाने वाला है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, उसका बिग चंक इंडिया से जा रहा है। इंडिया क्या है, इंडिया एक वॉकिंग लेबोरेटरी है ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्रिमिनल्स यहाँ आते हैं, उन्हें पता है कि साहब यहाँ पर कोई साइबर क्राइम कानून नहीं है, उन्हें पता है जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो साइबर क्राइम फ्रेंडली लॉ है और उन्हें पता है कि कन्विक्शन होने नहीं वाली। चलिए हम अपनी पूरी एनर्जीज इन्वेस्ट करते हैं साइबर क्राइम में, तभी तो साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर बन चुका है। सर तभी तो यहाँ पे साइबर क्राइम महीने के 30-35 लाख करोड़ कमा भी तो रहे हैं और सामने आके आपको खुद बता रहे हैं। हिम्मत तो देखिए कि साहब वो कहते हैं कि साहब हमें पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, जो करना कर लीजिए। सो मुझे लगता है वो दौर आ गया है कि अब लॉ को ड्रामेटिकली बदलना पड़ेगा और इफेक्टिव रेमेडीज लोगों को प्रदान करनी पड़ेंगी। सर it's not just cyber crime. Like I want to understand, sir, you have worked with the regulators, with the ministries very closely. Sir, AI governance हुआ, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन रूल्स वगैरह हुए या फिर ये साइबर क्राइम हुआ। सर क्या इंडिया वेट एंड वॉच वाली लॉजिक से कब तक चलेगा? बिकॉज आई थिंक नाउ द वाटर हैज गॉन अबव द हेड। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मुझे लगता है हम लोग ये वेट एंड वॉच अप्रोच है ना, वो हमको कहीं ना कहीं खाई में और धकेलती जा रही है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि चलो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। आई तो भारत में जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है बहुत ज़बरदस्त कि चलो हम जुगाड़ कर लेंगे, लास्ट मिनट कर लेंगे। मुझे मालूम है हमारा क्रिकेट जो है नेशनल पैशन है, मुझे मालूम है हर भारतवासी की एक यूटोपियन ड्रीम है कि लास्ट 6 बॉलों में 6 छक्के मारेंगे लेकिन रियलिटी है कि 6 छक्के मार नहीं पाते ना। तो अगर हम एज ए नेशन भी सोचते हैं कि साहब हम छक्के मार देंगे तो नहीं मार पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके यहाँ लीगल फ्रेमवर्क्स नहीं है, आप इफेक्टिव रेमेडीज़ नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। सो आई बिलीव यू विल हैव टू एक्ट प्रोएक्टिवली। अब AI का उदाहरण ले लीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि साहब चलो अभी AI को हमें ज़्यादा इनोवेशन करनी है तो इसलिए हम AI का भी लॉ नहीं लाना चाहते। भाई ठीक है, आपने इनोवेशन करनी है ज़रूर करिए, लेकिन AI का जो मिसयूज़ हो रहा है उसको तो रेगुलेट करिए। जो लोग नुकसान पहुँच रहे हैं जिन्हें, उन्हें एटलीस्ट आप इफेक्टिव रेमेडी तो प्रदान करें और अपने सिस्टम को इतना कारगर तो बनाएं जब AI क्राइम वाले मामले सिस्टम के सामने आएंगे तो एटलीस्ट सिस्टम काबिल तो हो पाएगा इस तरह के मैटर्स को डील करने के लिए। सो मुझे लगता है जितना प्रोएक्टिवली हम लोग अब टेक्नोलॉजी, लेजिस्लेशन और रेगुलेशन पर काम करेंगे एज ए नेशन, अच्छा रहेगा। और हमें अपना हिस्टोरिकल रीज़न भी तो समझना है ना। अब हम वो पुराने ज़माने वाले इंडिया नहीं रहे, आज हम नए युग के इंडिया हैं। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र हैं।
आज हम दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं। आज हम इंडिया में जो करने वाले हैं वो कल को वर्ल्ड बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बनेगा। तो जितनी जल्दी हम अपनी थॉट लीडरशिप को पहचान लें और उस स्पेस को ऑक्यूपाई करें और लोगों को एक डायरेक्शन दे कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं, आप हमें फॉलो करिए। अब देखिए यूपीआई जैसा केस है, मतलब इंडिया ने जो काम कर रखा है दुनिया भर में किसी कंट्री ने नहीं किया। सर बाकी नेशंस तो हमारा ही यूज कर रहे हैं। देखिए, सो दैट कैन हैव, दिस शोज कि अगर इंडिया अपने आई पर आ जाए तो इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। बट कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी नींद से जगना होगा। हम अभी सो रहे हैं, जितनी जल्दी हम जगेंगे उतना जल्दी हम और आगे अपनी थॉट लीडरशिप ले जाएंगे, अपनी कंट्री को आगे बढ़ा पाएंगे। Correct. Sir, last few questions to wrap it up. Sir, first, sir, I am a very big reader, I'll say, and a learning of the crypto space. Sir, crypto में इस समय 30% tax है, income tax, 1% TDS. So, what do you say? So, because you have written books, you also read and a lot of time talk about it. What do you think the regulation should be actually around the crypto space? I'm of the firm opinion that the crypto space must have an appropriate enabling legal framework and regulation. ये दौर कहना कि साहब मैंने आंखें बंद कर दी हैं, मैं क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कल देखेंगे, वो दौर खत्म हो गया। मतलब आप ये समझो ना कि कबूतर आंखें बंद करने से बिल्ली तो जाने नहीं वाली। क्रिप्टो सिस्टम्स आर हियर टू स्टे। करेक्ट। जितनी जल्दी आप उसको एनेबलिंगली रेगुलेट करेंगे आप उस इकोसिस्टम का बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे साहब मुझे तो पता नहीं, मैं केवल 30% टैक्स ले लूँगा, चलिए आपने 30% टैक्स ले भी लिया, उस 30% टैक्स देने के बाद भी आपका क्रिप्टो एसेट लीगल नहीं हुआ, तो आपको 30% टैक्स देने का बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यही रीज़न है कि जितने भी क्रिप्टो इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं वो इंडिया से बाहर चले गए। वो अलग ज्यूरिसडिक्शंस में, चाहे दुबई हो गया, चाहे सिंगापुर हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क है। मैंने कुछ साल पहले एक कंट्री है वहाँ पर बेलारूस में काम किया ऑन द क्रिप्टो एसेट्स एंड द लॉ। एक छोटी सी कंट्री ने दिखाया कि साहब अगर आपके पास फ्यूचरिस्टिक विजन हो तो आप एक बहुत इफेक्टिव कारगर ला सकते हैं कानून ऑन क्रिप्टो एसेट्स। उन्होंने क्रिप्टो को लीगल टेंडर बना दिया विद इन अ पर्टिकुलर टाइम जोन, अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, एंड दे गिव मैसिव टैक्स डिस्काउंट्स। सो मच सो कि उन्होंने कहा कि 2049 तक हम आपको टैक्स डिस्काउंट देंगे, आप इसमें काम करिए। तो जब तक आप प्रोएक्टिवली आप क्रिप्टो को रेगुलेट और लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। रिकॉग्नाइज सर, आई थिंक जब 2020 में जब जजमेंट आया था इंडियन मोबाइल एसोसिएशन वाला, उसके बाद से सर ऑलमोस्ट आज 6 साल होने वाले, क्योंकि मार्च 2 या 3 को आया था सर। आए करेक्ट, और कुछ नहीं हुआ अभी तक। 6 साल हो गए, तब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि यार ठीक है, ये बैन होने वाली चीज़ नहीं है, अब आपने डिसाइड करना है। सर मेजर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सी बॉडी डिसाइड करेगी, वेदर आरबीआई, वेदर सेबी या सम अदर बॉडी या एफआईयू, तो क्योंकि सिर्फ रेगुलेशन वो देख लेगा। देखिए, अगर आप इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जजमेंट पर देखें तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ एक और आरबीआई की नोटिफिकेशन को रद्द किया, वहाँ दूसरी ओर रिकॉग्नाइज भी कर दिया कि सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोडल एंटिटी होगी जो रेगुलेट करेगी। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आरबीआई को पावर है इसको रेगुलेट करने के लिए, लेकिन हम पिछले 6 सालों में देख रहे हैं कोई डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क नहीं लेकर आए हैं। करेक्ट। एंड आई थिंक दे कुड बी रीजंस। बेसिकली शायद इंडिया चाहता है अपनी डिजिटल करेंसी को बढ़ाने के लिए, इंडिया के पास अलग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होंगे। बट हैविंग सेड दैट, जो इतना बड़ा चंक क्रिप्टो इकोसिस्टम का है उसको हम क्यों बाहर जाने दे रहे हैं? उससे हम बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे? और उससे हम मनीज जनरेट नेशनल ग्रोथ के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो मुझे लगता है करने की जरूरत है, बट फॉर दैट यू रिक्वायर पॉलिटिकल विल। और अभी टफ वॉर भी चल रही है, बिकॉज आरबीआई तो चाहता है कि साहब मैं रेगुलेट करूं, बट क्योंकि क्रिप्टो इतना विशाल हो गया है, शायद अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी चाहते हैं कि साहब हमारा भी रोल होना चाहिए। तो वो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है जितनी जल्दी क्लैरिटी आए, इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो इज द ओनली वे गोइंग फॉरवर्ड। हम सोचते हैं कि साहब बिटकॉइन है, गलत है, बेकार है, क्रिमिनल है, वो बात खत्म हो गई। आज क्रिप्टोज इतने हद तक मिच्योर हो गए हैं कि इवन आंध्र प्रदेश में आज जो है लैंड रिकॉर्ड जो हैं वो आज ब्लॉकचेन पर सेव हो रहे हैं। सर ब्लॉकचेन मिच्योर हो रही है। करेक्ट सर, आई इवन रिकॉर्डेड अ कंटेंट ऑन द सेम थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली सर दिसंबर में इन वन ऑफ द जजमेंट बिहार के एक नोटिफिकेशन को हटाया और ये बोला कि आप लोग अपने लैंड रिकॉर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो लैंड रिकॉर्ड्स स्टेबल तो रहेंगे। एक चीज़ तो सर, यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग डिग्रीज थ्रू ब्लॉकचेन, क्योंकि एटलीस्ट वो फिर फेक और फॉर्जरी वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। वही सर, यूनिवर्सिटीज़ आर ब्रिंगिंग इन देयर डिग्रीज ऑन द ब्लॉकचेन।
तो इट जस्ट दैट कि इंडिया रियली नीड्स टू बी प्रोएक्टिव, एंड वेट एंड वॉच वाला अब नहीं चल पाएगा। ना अब वो गाड़ी जो है स्टेशन से जा चुकी है, जितनी जल्दी हम जग जाएं और अगली गाड़ी में बैठ जाएं उतना अच्छा रहेगा। सही बात है सर। लास्ट फ्यू क्वेश्चन, आई प्रॉमिस, आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम सर। फॉर अ law student, first I'll come to the law student, this advancement in the technologies, where should a law student start studying around? What kind of laws he should be paying attention to? If you're a law student, I would want you to please be cognizant of the intersection between law and technology. उसका रीज़न ये है कि आप लॉ स्टूडेंट हैं, अल्टीमेटली किस डिसिप्लिन ऑफ लॉ में आप जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जिस डिसिप्लिन में जाएंगे उसमें टेक्नोलॉजी का रोल होगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और लॉ के न्यूआंसेस को, साइबर लॉ के न्यूआंसेस को समझेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस एरिया में उसको अमल कर पाएंगे। दैट इज़ वन। नंबर टू, टेक्नोलॉजी को एज ए लॉ स्टूडेंट आपको इस्तेमाल भी करना है, आप स्पेक्टेटर नहीं हैं। और इस्तेमाल कैसे करना है? आप या तो लीगल टूल्स का इस्तेमाल करें, आजकल बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे ये लीगल टूल्स भी हैं हेलुसिनेशन कर रहे हैं, AI हेलुसिनेट कर रहा है। तो जब तक आपको इन चुनौतियों के बारे में पता नहीं होगा, आप पूरी तरीके से एज ए लॉयर उसको डील नहीं कर पाएंगे। और थर्ड, यूज टेक्नोलॉजी फॉर कॉन्स्टेंटली अपडेशन एंड फॉर कीपिंग योरसेल्फ अप टू डेट, क्योंकि मैन्युअली पॉसिबल नहीं होगा कि हर वेबसाइट पे जाओ, यहाँ ढूंढो, ये ढूंढो। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर आप ज़रूर आपकी नज़र होनी चाहिए, सो दैट यू कैन बी अपडेटेड। और एक बार आप टेक्नोलॉजी से अवगत हो गए, फिर आप जो भी देख लेंगे आप पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, AI इज कमिंग इन, आई बिलीव AI विल इम्पैक्ट एवरी एरिया ऑफ लीगल डिसिप्लिन, क्योंकि AI हर चीज़ में घुस जाने वाला है। तो जब AI हर चीज़ में घुसेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपको पता होना चाहिए। और कल को AI आपको झूठी इन्फॉर्मेशन देता है और आप वही झूठे केसेस अदालत में डाल देते हैं, तो आप पर क्या रेमिफिकेशन होनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। सो इसलिए अवेयरनेस इज क्रूशल, good responsible use of tools is essential, and finally have a futuristic mindset. ये मत सोचो कि आज जो टेक्नोलॉजी यहीं तक है, आगे नहीं बढ़ेगी। प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है, तो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक यू विल बी वेल poised to move forward. That's good. And sir, I'll also add one point here कि we need not be afraid कि AI will replace us. It will replace us if we are not upgrading ourselves with AI. Absolutely. AI will not be able to replace us if we can continue to retain our cognitive capabilities and our ability to go ahead and find out how we can use AI. Let AI not use us. Let us use AI. That becomes of crucial necessity. और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट AI अवेयर हो जाएं। ठीक है, डर है, जॉब्स जाएंगी, पैरालीगल्स की जॉब जा रही हैं और जाएंगी भी, लॉजिकली सो। बहुत सारी लॉ फर्म्स रिट्रेंच कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि साहब मैं AI वाला एजेंट ले लेता हूँ ये लेने की बजाय। बट एक नया ट्रेंड आया है, एक नया सर्वे आया है, वो कहता है बहुत देर बाद हम देखेंगे कि लोग पुनः से जिनको नौकरियों से निकाल रहे हैं उनको वापस बुलाएंगे, क्योंकि AI के एक्सटेंसिव यूज़ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं आपका एक्सपोजर होगा, और अल्टीमेटली जो दोबारा फ्रेश आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो उन लोगों के संदर्भ में होगी जिनके AI स्किल्स ज़्यादा अच्छे डेवलप हो चुके हैं। सो मुझे लगता है कि हमें कुछ करें या ना करें, अपने AI स्किल्स को इस तरीके से डेवलप करना है ताकि हम कामयाब हो सकें आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे रोज़मर्रा जीवन में हम AI का क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली सर। सर लास्ट 2 क्वेश्चन सर, एल्डरली या फिर नॉर्मल एक सिटीजन के लिए उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो साइबर फ्रॉड से बचे? अगर आप एल्डरली हैं, अगर आप बुज़ुर्ग हैं, तो पहली चीज़ ऐसा कर लीजिए कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक सावधानी, एक ड्यू डिलिजेंस और एक साइबर सुरक्षा का माइंडसेट लेकर चलिए। तो इसलिए 2 चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, कंजूस हो जाइए अपने डेटा के बारे में, और बहुत ज़्यादा आप शक्की हो जाइए। जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको शक के दृष्टिकोण से देखें। क्यों? क्योंकि आज इंटरनेट जो है एक विशाल महासागर बन चुका है, जहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स इस फिराक में हैं कि आप गलती करो और हम आपको पकड़ते हैं। तो मुझे लगता है आपने गलती नहीं करनी, विश्वास किसी पर नहीं करना। ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन जो आपको विवश किया जा रहा है बिल्कुल नहीं करना। कोई अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है कि हाँ जी तुरंत करो, कोई ये इमीडिएटली काम करना, वो तो काम करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, मतलब टस से मस नहीं होना, आपने ये देखना है। और अल्टीमेटली
बी केयरफुल। जितने आप सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना है सूझबूझ के साथ करिए। कोशिश करें कि केवल सिक्योर ट्रांजैक्शंस करिए सिक्योर वेबसाइट्स पर जो HTTPS के साथ शुरू होती हैं, एंड नॉट विद नॉर्मल HTTP। कोशिश करें अगर आप क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी लिमिट्स को छोटा रखें। कोशिश करें लोगों पर रिलाई ना करें, लोगों पर विश्वास ना करें। अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी और को मत दे दीजिए कि भाई मेरे ब्याह पे ट्रांजैक्शन कर लो। और अपने खातों पर, अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर हर 3 दिन में एक बार नज़र ज़रूर डाल लें कि कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसे रिपोर्ट ज़रूर करना है। क्योंकि अब तो सरकार कहती है आप घर बैठे हुए उसे रिपोर्ट कर सकते हैं 1930 पे या cybercrime.gov.in पे। अल्टीमेटली इतना ही काम करना है। मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, बट समझ लीजिए टेक्नोलॉजी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको डिफ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए आपको ज़्यादा शातिर होना है और साइबर क्रिमिनल्स को सफल ना हो पाए इसके लिए इंश्योर करना है। Very, very good, sir. Sir, in next 5 years, where do you see Indian legislation based on the technology? Technology तो sir बहुत ज़्यादा advance हो ही जाएगी, but Indian legislation से what are you expecting in next 5 years? In the next 5 years, I'm expecting Indian technology legislation to be very proactive and substantially making substantial advances forward. Why? Because India has to lead by thought leadership. And India is now in 2026 hosting the India AI Impact Summit. There's a massive focus on AI with the National AI Mission. We also have the National Quantum Mission going across. So India is just making the right noises, except India now needs to make the right noise in terms of legislation, in terms of enablement. You want to promote innovation, by all means go ahead. But please go ahead and come down very heavily on misuse of technology. Why? Because this misuse of technology is targeting Indians at large. और काफ़ी हद तक तो इंडिया जो है एक नेचुरल लीडर है ग्लोबल साउथ का। तो हम जो करने वाले हैं वो बहुत हद तक डेवलपिंग कंट्रीज भी फॉलो करने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हम इसको आगे बढ़ेंगे अच्छा रहेगा। नई टेक्नोलॉजीज़ पर लीगल फ्रेमवर्क्स लाइए, और जब आप लाएं तो इंश्योर करिए कि ऐसे फ्रेमवर्क लाएं कि हर 6 महीने में जाके आपको पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़ जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ बढ़ रही है। इसलिए आपको प्रिंसिपल बेस्ड लेजिस्लेशन पर काम करना पड़ेगा। यू मस्ट कम अप विद ब्रॉड लीगल प्रिंसिपल्स which can be time tested, and then please give sectoral regulators the flexibility to come up with sectoral specific regulations. That's the best way forward. Broad principle based legislation and sector based regulators coming up with sectoral stuff. Once you do that, that will be a good way forward, because इंडिया में क्या होता है, एक बार लॉ बनता है उसको अमेंड करने में बहुत टाइम लग जाता है। पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसेस काफ़ी स्लो है। मुझे लगता है उस प्रोसेस को भी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। बट जितना आप जेनरिक अपने लॉ को रखेंगे उतना आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। Thank you so much, sir. Like, it was genuinely a very eye-opening session. Like, learned a lot of things. क्या क्या शेयर करना है, नहीं करना, कैसे tools use करने हैं, and what kind of things to keep in mind to save ourselves from all the cyber frauds and everything. Sir, thank you so much for your valuable time. I know how hectic and busy your schedule was, and today, even on Saturday evening, we are shooting this. Sir, thank you so much. It was really a pleasure to host you, sir. Thank you for inviting me to your show. Congratulations. And congratulations for you for coming up with such diversity of questions. We covered a lot of things. Yes, sir, we But did. your kind of a program and podcast is going to be very important in creating more awareness. So thank you. It's been a pleasure having you. Thank you, sir. Thanks. This man with whom I just recorded the podcast genuinely needs no introduction at all. He's such a gem of a person, like Pawan Duggal sir really explained me what exactly the AI world is getting into. How India is trying to get a bit proactive. How we need to be safe from all the cyber crimes happening around us. What steps are required that we need to take. So, if you have watched the podcast till now, I am sure you are taking back home certain learnings. And I'm really thankful to Pawan Duggal sir for giving his and I am thankful to Pawan Duggal sir to giving me his immense time. I really respect that. Thank you so much everyone for watching this reel. Please like, share, comment on our podcast and keep supporting Say Something Simarjeet.